Hello everyone. Welcome to Star Psyche, and you are here to learn with our page. And my name is Ritika Datta. I am one of the founders of Star Psyche. Before we move ahead with the course, which is a recorded one, I would like to introduce myself. I am Ritika Datta, a laughter therapist, a neurobics trainer, mental health trainer, as well as an art therapy coach. I am also practicing as a life coach as well as a trainee psychologist. So I have come up with various questions, set of questions. This is going to be a course which is going to be in series. तो ये एक series course होगा which will be in parts. ठीक है. So the main motive of this course is to um, make people who are new to counseling have some questions, set of questions that they can use for their counseling sessions. क्योंकि ऐसा कई बार होता है when you are a newbie and you are not very sure कि counseling session में क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है, कैसे शुरू करना है, कैसे नहीं शुरू करना है. These were some of the significant problems that I myself faced. That's why I have come up with these series. You can go through the series. This is the part one of the series. It will be a long one. ठीक है. तो आप एक एक करके part अगर cover करोगे तो आप के पास एक टूल बॉक्स बन जाएगा विच यू कैन यूज इन योर काउंसलिंग सेशन. Okay, so I will start presenting my screen. In case you have any doubts throughout the sessions, throughout the course, you can drop into the comment section and we are sure to address it. हम थोड़ा देखेंगे, we'll definitely address it. शायद immediately ना करें, you will definitely give a, get a response from us. Okay, so I'll just start to present my screen. Okay, so I think my screen is visible to all of you. Okay, today is our first day of the series, and this is going to be questions to ask in first counseling session, the very first part. यहाँ पे हम बात करेंगे. I will try to be, bilingual. I'll speak in both English as well as Hindi so that no one faces any issues. ठीक है. तो हम यहाँ पे ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हम लोग अपने पहले काउंसलिंग सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली फॉर पीपल हु आर नॉट वेरी अक्वेंटेड टू काउंसलिंग, दोज ऑफ यू हु आर न्यूबीज. ठीक है. जो नए हैं इस फील्ड में, दे आर जनरली वेरी कंफ्यूज कि पहले क्या करना है. हमने बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स में बहुत सी चीज़ें पढ़ी है कि रैपो बिल्ड करना पड़ता है. ठीक है. फिर नॉन जजमेंटल रहना पड़ता है, और आगे फिर आगे क्या करना है. ठीक है. तो इससे आपको पता लगेगा कि बेसिक क्या है. ठीक है. बेसिक क्या पूछूं, मैं क्या करूं. ठीक है. एंड ऑल्सो दीज क्वेश्चंस आर फॉर काउंसलिंग सेशंस. ठीक है. क्लिनिकल सेटअप के लिए दीज माइट नॉट बी वेरी अप्रोप्रिएट, क्योंकि क्लिनिकल के लिए वी नो वी हैव अ केस स्टडी फॉर्मेट. ठीक है. तो वहां पे वी ऑलरेडी हैव a question set. While in counseling sessions, it is not compulsory to follow that format itself. You can go ahead with these questions. Okay. So first we'll go ahead with introduction and background. ठीक है. We'll try to understand the client's introduction. Introduction मतलब हम introduce करेंगे खुद को, client को समझेंगे, उसका introductory part समझेंगे, उसके family background को, ये सारी चीजें हम समझेंगे. So कैसे सवाल करेंगे. जो पहला सवाल है वो है what brings you to therapy today. ठीक है. या फिर how can I help you today. अगर मैं इसे हिंदी में बोलूं, ठीक है, क्योंकि देखो ऐसे क्लाइंट्स आएंगे ना जिनके साथ है ना आप इंग्लिश में नहीं बात कर सकते. ठीक है. बहुत लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं. तो ऐसे लोगों के साथ व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ क्लाइंट्स हु आर नॉट वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश. यू आर बेसिकली गोइंग टू आस्क देम द क्वेश्चंस लाइक आज मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ. ठीक है. तो ऐसे आप सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है. अगला सवाल जो आप पूछ सकते हैं, देखिए एक और बात मैं आपको बता दूं, ये सीरीज में पूछने की आपको कोई जरूरत नहीं है. यू विल हैव टू हैव दिस बेसिक सेंस कि उसको कब क्या पूछना है. ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये लिस्ट दे दी है तो ये लिस्ट लेके आप बैठेंगे, बैठ के आप एक के बाद एक पूछेंगे. ऐसे नहीं होगा.
ठीक है. सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज the questions according to your need. These are the questions that you can ask. ठीक है, you can have these in your mind, but you have to organize the questions as per your requirement and as per the client's requirement as well. ओके. सो हमारा दूसरा सवाल है, कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट योर बैकग्राउंड एंड योर फैमिली. यहाँ से हमें क्लाइंट की फैमिली के बारे में, क्लाइंट के बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है. वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फैमिली बैकग्राउंड, वेयर फ्रॉम द क्लाइंट बिलोंग्स. ठीक है, ये चीज़ें वील बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो वील आस्क देम. अगर हिंदी में पूछेंगे, क्या आप अपने परिवार के बारे में मुझसे कुछ बता पाएंगे, क्या आप मुझसे थोड़ा शेयर करेंगे कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, आपके परिवार में कौन कौन है. ऐसे सवाल हम करेंगे. ठीक है. अगला सवाल जो हम पूछ सकते हैं वो है, व्हाट आर योर गोल्स फॉर आवर थेरेपी सेशन. ठीक है. तो इसका मतलब क्या है, हम क्या पूछेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है. ठीक है, ऐसे नहीं पूछना है कि एकदम आपका लक्ष्य क्या है इस थेरेपी में, ऐसे नहीं पूछना है. आपको क्या करना है, आपको बड़े प्यार से पोलाइटली आपसे आपको उनसे पूछना है कि आप क्या, आपके दिमाग में कोई लक्ष्य है, कोई गोल है जिसको लेके आज आप थेरेपी में आए हो. ठीक है, तो आपको ऐसे सवाल करने हैं. So what are we going to ask is that, do you have anything particular, any particular goal that you have in your mind? ठीक है, दैट यू वॉन्ट मी टू अड्रेस इन द थेरेपी सेशन. तो आपको ऐसे सवाल करने हैं. वाइल आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ऑल ऑफ इट इज नॉट रिटन इन द स्लाइड्स. हिंदी में तो नहीं ही लिखा हुआ है. इफ यू वॉन्ट, यू कैन डेफिनेटली नोट दीज डाउन. ओके, पॉज कर करके आप कृपया नोट कर लीजिए. ठीक है. हाउ हैव यू बीन फीलिंग लेटली. दिस इज अनदर क्वेश्चन दैट यू कैन आस्क. इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि अभी आजकल आप कैसा महसूस कर रहे हैं, या फिर आप कैसा महसूस करते हैं, क्या कोई ऐसी फीलिंग है जिसके बारे में आप बात करना चाहेंगे. तो हम ऐसे हिंदी में सवाल करेंगे. इन इंग्लिश वी कैन डायरेक्टली यूज दिस क्वेश्चन. वी कैन डायरेक्टली आस्क द पर्सन, हाउ हैव यू बीन फीलिंग लेटली. इज देयर एनी फीलिंग दैट यू वांट टू टॉक अबाउट टुडे. ठीक है, तो ऐसे सवाल हम पूछेंगे. Then next we'll ask, what specifically motivated you to seek therapy. ठीक है, तो इसको हम कैसे पूछ सकते हैं अगर इंग्लिश नहीं समझ रहा है क्लाइंट, क्योंकि नहीं समझेगा. काफी क्लाइंट्स ऐसे आएंगे जो नहीं समझेंगे या शायद कंफर्टेबल नहीं होंगे, बिकॉज देर आर पीपल हु कैन ओपन अप इन देयर ओन लैंग्वेज मोर. सो यू हैव टू आस्क दैट क्लाइंट कि आज आप थेरेपी में आए हैं, तो आपको किसी ने कुछ कहा है तब जाके आपने थेरेपी ली है, या फिर आप खुद से मोटिवेट होके आज आप थेरेपी में आए हैं. अब मैं हर भाषा में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकती, बट अगर आपकी कोई और भाषा है तो इसको उसमें कन्वर्ट कर लीजिए. ठीक है. अगला स्लाइड हमें बताएगा मेंटल हेल्थ एंड सिम्टम्स से रिलेटेड हम सवाल कैसे पूछेंगे. हाउ आर वी गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ एंड सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट. ओके. तो नंबर वन इज, हैव यू एक्सपीरियंस्ड एनी मेंटल हेल्थ इश्यूज इन द पास्ट. ओके. तो हम यहाँ पे वी आर डायरेक्टली आस्किंग द क्लाइंट दैट क्या आपने किसी तरह का कोई दिमागी तनाव, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस किया है पहले. ठीक है, पहले के टाइम में या रिसेंट टाइम्स में आपको ऐसे सवाल पूछने हैं. ठीक है, जिससे आपको पता चले, जिससे क्लाइंट आपको बताए कि हाँ, मेरे साथ ऐसा पहले हुआ है या नहीं, पहली बार हो रहा है, जो भी है. ओके. सेकंड सवाल है, आर यू करेंटली एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स दैट यू वांट टू शेयर. इसका मतलब, क्या अभी इस वक्त आप किसी तरह का कोई सिम्टम, किसी तरह का कुछ फील कर रहे हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या हो सकता है, बहुत से क्लाइंट आपको ओपनली बताएंगे कि हाँ, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ. ठीक है. I'll tell an experience of mine. Okay. I'm not breaking any confidentiality. I'm not going to tell you the name and whatever. There was this client. Okay. There are clients like this. Okay, जो आते हैं and जो क्या करते हैं, they'll not directly tell you. ठीक है, I am suffering from this.
that I am the one who is suffering from this, they'll say that okay, there's this friend of mine, or okay, there's a sibling of mine who is suffering from this problem, and he is in depression or something like that. They'll say like that, they'll not directly address themselves. ठीक है, तो वो उस चीज को जब बोलेंगे ना, वो स्टैमर भी करते हैं कई बार. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो सच में अपने फ्रेंड की बात कर रहा है या फिर वो अपनी बात कर रहा है. ठीक है, जनरली इन दी सिचुएशंस दे आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देमसेल्व्स. दे जस्ट डोंट वांट टू डायरेक्टली टेल यू दैट दिस इज माय प्रॉब्लम. ओके. सो हम जब ऐसे सवाल पूछते हैं ना मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, कि कोई सिम्टम्स देख रहे हैं क्या, कोई चीज़ है जो आपको दिक्कत दे रही है, तो वो डायरेक्टली नहीं बताते हैं. कई ऐसे क्लाइंट्स आते हैं. देन हम पूछ सकते हैं, हाउ डू यू जनरली मैनेज स्ट्रेस इन योर डेली लाइफ. मतलब यू हैव टू आस्क द क्लाइंट कि हाउ आर यू करेंटली और जनरली मैनेजिंग स्ट्रेस. ठीक है, या फिर हाउ डू यू मैनेज द स्ट्रेस. आप कैसे अपने हर रोज के स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, उसके साथ कैसे जीते हैं, उसके साथ कैसे कोप करते हैं, ये आपको पूछना है. हैव यू नोटिस्ड एनी चेंजेस इन योर मूड और बिहेवियर इन द पास्ट फ्यू डेज और मंथ्स. सो क्लाइंट से आपको डायरेक्टली ये पूछना है कि आपके मूड में या आपके बिहेवियर में क्या आपने कोई चेंज, कोई बदलाव नोटिस किया है. ठीक है, आप कैसा बिहेव कर रहे हैं, आपको कोई मूड स्विंग्स हो रहे हैं क्या रिसेंटली. ओके. सो यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस. मतलब आपको प्रोब करना है. इफ यू आर इन काउंसलिंग यू मस्ट नो अबाउट प्रोबिंग क्वेश्चंस. यू नो ना व्हाट इज प्रोबिंग क्वेश्चंस. प्रोबिंग क्वेश्चंस आर बेसिकली इफ अ क्लाइंट इज टेलिंग यू समथिंग, यू हैव टू नो मोर. सो आपको और डिटेल में पूछना है. ठीक है. सो ऐसे सवाल हम पूछेंगे. देन हम पूछेंगे, आर देर एनी स्पेसिफिक कोपिंग मैकेनिज्म्स दैट यू यूज. दिस इज वेरी सिमिलर टू हाउ डू यू जनरली मैनेज स्ट्रेस. ठीक है, इससे हमें पता चलेगा कि क्लाइंट कैसे मुश्किल सिचुएशंस के साथ कोप करता है. हाउ द क्लाइंट जनरली कोप्स विद डिफिकल्ट सिचुएशंस, वी आर गोइंग टू गेट टू नो अबाउट दैट. ओके, आई होप दैट मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू, राइट. ओके. रिलेशनशिप्स एंड सपोर्ट. सो हम देख रहे हैं ना, हमें एक एक स्लाइड में कितने सारे सवाल मिल रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन में आपके सारे सवाल आपको पूछ लेने हैं. ठीक है, कई बार ऐसा भी होता है कि क्लाइंट खुद से ही सब कुछ बता देगा एंड आपके काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे. इन दैट सिचुएशन प्लीज मेक श्योर टू नॉट रिपीट द क्वेश्चन अगेन. इफ यू हैव गॉट द आंसर फॉर इट देन फाइन. ठीक है, उसको फिर से मत पूछिए क्योंकि लिस्ट है यहाँ पे. ऐसा मत कीजिएगा. अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस है दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, आंसर चाहिए आपको, तो आप तब उससे पूछ लीजिए आफ्टर द क्लाइंट हैज स्टॉप्ड, यू नो, मतलब उसका हो जाए. ऐसा नहीं है कि क्लाइंट आए आप उस पर टूट पड़ो बिल्कुल क्वेश्चंस के साथ कि नहीं आप बताओ. ऐसे नहीं करना है. ठीक है, आपको क्या करना है, क्लाइंट आया अगर वो खुद से बोल रहा है तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, लिसन टू दैट पर्सन विदाउट जजिंग, विदाउट एनी. ये मैं सबको बताऊंगी, सबसे पहले तो अपने चेहरे पे ना ये शिकस्त मत आने देना कि मेरे को पता चल रहा है मैं तुमको जज कर रहा हूँ. ये मत करना. ठीक है. ओके. सो रिलेशनशिप एंड सपोर्ट सिस्टम. क्लाइंट का संबंध दूसरों के साथ, दूसरे मतलब कौन होते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, फैमिली होती है, दोस्त होते हैं, कलीग्स होते हैं. ठीक है, तो इन लोगों के साथ उनका रिश्ता कैसा है, हाउ इज द क्लाइंट्स रिलेशनशिप विद देयर फैमिली, देयर कलीग्स, देयर फ्रेंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. ओके. तो उसके लिए जो पहला क्वेश्चन जो हम पूछेंगे वो है, can you describe your current relationship with your family, your friends, as well as your romantic relationships? क्या आप मुझे अपने संपर्कों के बारे में बता सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि क्लाइंट को इस क्वेश्चन से थोड़ा बुरा लग सकता है, प्लीज मेक श्योर टू टेक कंसेंट कि क्या मैं आपसे आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके दोस्तों के साथ आपके रिश्तों के बारे में पूछ सकता हूँ या सकती हूँ. Can I please ask you, like if you may allow me, can I ask you about your relationship with your friend or your partner, something like that. ठीक है. Then who do you turn to for support? This is a very important question. इससे हमें क्लाइंट का सपोर्ट सिस्टम पता चलेगा. इफ द क्लाइंट हैज अ सपोर्ट सिस्टम, व्हाट काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम द क्लाइंट हैज, हु इज द वन पर्सन हु एनकरेजेस द क्लाइंट, इससे हमें ये पता चलेगा. ठीक है. देयर विल बी क्लाइंट्स जो इस क्वेश्चन पे
बहुत देर तक सोचेंगे, ठीक है, ऐसा होगा, बिकॉज दे हैव नेवर पॉन्डर्ड ऑन दीज क्वेश्चंस। काउंसलिंग में हम इतने सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि द क्लाइंट ponders on these questions, right? So who do you turn to for support? मतलब आप जनरली किसके पास जाते हो जब आप बहुत परेशान होते हो? आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो कि जब आप बहुत परेशान होते हो, आप जनरली किसके पास जाते हो सपोर्ट के लिए या किसी तरीके की तसल्ली के लिए? आप किसके पास जाते हो? What does communication look like with others? दूसरों के साथ बातें करना, कम्युनिकेट करना कैसा लगता है आपको? ठीक है, आपको कैसा महसूस होता है ये सब करके? सो दीज आर द काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस जिससे आपको उसका संपर्क जो है सबके साथ, द काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स द क्लाइंट हैज विथ अदर्स in the environment, in the background of the client, you will get to know that. Okay, are there any relationship issues that you would like to address or share with me? कोई ऐसी रिलेशनशिप इशू है जो आप मुझे बताना चाहेंगे या जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? आप बेझिझक कर सकते हैं। Without any hesitation, you can share any form of relationship issues that you might have with anyone, ठीक है? And that you want me to address. Okay, then you can also ask कि in the recent times, have you been feeling disconnected or have you been feeling isolated? क्या अभी recently आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है? अगर आपको बुरा ना लगे, क्या मैं ये बात आपसे पूछ सकती हूँ? Make sure to take consent from the client. Okay. सो दीज आर अ फ्यू पॉइंटर्स। लिस्ट में अगेन पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आस्क देम। पहले सेशन में ही पूछना है ये ज़रूरी नहीं है। अगर क्लाइंट ओपन अप ना करे, आप धीरे धीरे पूछ सकते हो। ओके, लाइफस्टाइल एंड हैबिट्स। अब हम क्लाइंट के लाइफस्टाइल को, उसकी आदतों को समझेंगे। उसको समझने के लिए हमें क्या करना है? हमें ऐसे सवाल पूछने हैं। वुड यू बी कंफर्टेबल टू शेयर योर एवरीडे रूटीन विथ मी? क्या आप मुझसे अपने हर रोज की रूटीन शेयर कर पाएंगे? क्या आप करना चाहते हैं? अगर आप करेंगे तो हम उस पे काम कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसे पूछना है कि वुड यू बी कंफर्टेबल शेयरिंग योर एवरीडे स्केड्यूल्स, एवरीडे रूटीन्स विथ मी, इफ दैट इज फाइन विथ यू? ओके, व्हाट आर सम वेज इन विच यू प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर? कोई ऐसी चीज जो आप करते हैं जिससे आप अपने आप को प्यार दिखाते हैं, ऐसी कोई चीज है? ऐसे ऐसी चीजों में ना काफी सारे क्लाइंट्स बोलते भी है जनरली कि हाँ, मैं स्किन केयर करता हूँ, करती हूँ, या फिर मैं खेलता हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ। जनरली पीपल डू देयर हॉबीज फॉर सेल्फ केयर। सो ऐसे जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है? देन डू यू एंगेज इन एनी हैबिट दैट कैन बी अनहेल्दी फॉर यू? यहाँ से हमें क्लाइंट की थोड़ी सी वीकनेस भी पता चल सकती है। वी विल गेट टू नो थोड़ा बहुत weaknesses of the client. Okay, so if the client gets indulged in any kind of unhealthy habit, there are many clients who will say I smoke, ठीक है, या फिर आई ड्रिंक अ लॉट व्हेन आई एम स्ट्रेस्ड, व्हेन आई फेस बर्नआउट, या ऐसी चीजें आएंगी आपके पास रिस्पॉन्सेज। सो दीज फ्रॉम दीज यू विल गेट टू नो द अनहेल्दी हैबिट्स ऑफ द क्लाइंट विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू आगे काउंसलिंग सेशन में एंड माइट रिक्वायर्ड टू बी एड्रेस्ड एज वेल। हाउ डज अ टिपिकल डे इन योर लाइफ लुक लाइक? जनरली आपकी जिंदगी में वही वही बात है, रूटीन का ही यहाँ से भी पता चल रहा है, ठीक है? आप वो पूछ सकते हो, आप ये भी पूछ सकते हो, एक ही बात है। सो आपका दिन जनरली कैसा दिखता है? आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? आपका दिन खत्म कैसे होता है? ठीक है, हाउ डज योर डे स्टार्ट? ओके, हाउ डज योर डे एंड? विथ वॉट डू यू एंड योर डे? ठीक है, सो हाउ डू यू फील एट द एंड ऑफ द डे जनरली? So these are the questions that you can ask. You can note them down. All of them are not mentioned in the PPT. I might give a little bit of extra information. Okay. Are there any lifestyle changes that you are dealing with currently? क्या इस वक्त किसी तरीके की चेंज आपकी जिंदगी में हुई है? लाइफस्टाइल चेंजेस से मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट किसी वजह से दूसरे शहर शिफ्ट हुआ हो, ठीक है? लाइफस्टाइल चेंजेस तब भी हो सकते हैं जब
घर में किसी की डेथ हुई हो। ओके। सो बहुत सारी चीजों से लाइफस्टाइल चेंज हुआ होता है। ठीक है, उसका असर भी रह जाता है। तो आपको क्लाइंट से ये पूछ लेना है कि किसी तरह की कोई लाइफस्टाइल चेंज उसकी जिंदगी में रिसेंटली हुई है या नहीं। ठीक है। एक्सपेक्टेशंस एंड एंगेजमेंट। ओके। सो दिस इज बेसिकली, हम यहाँ से क्या समझेंगे, we'll be able to understand what the client is basically expecting from the therapy sessions। उसको क्या उम्मीद है, वो क्या उम्मीद लेके आया है आपके पास। देखिए, क्लाइंट ना बहुत छोटी छोटी दिक्कतें लेके जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, तो वो ना अपने दिल में कोई उम्मीद लेके आता है। नाउ दे आर नॉट वेरी, यू नो, दे डोंट नो दिस दैट हम लोग कैसे काम करते हैं। सो दे जनरली हैव सच एक्सपेक्टेशंस कि मैं काउंसलर के पास जाके बोलूंगा, वो कोई सोल्यूशन बता देगी या बता देगा, वो मुझे कोई एडवाइस दे देंगे एंड मैं वो एडवाइस फॉलो करूंगा, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। जनरली ऐसा ही होता है। ठीक है, ना भी हो सकता है। ओके। सो एक्सपेक्टेशंस, वो उम्मीद क्या रख रहा है, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस द क्लाइंट इज हैविंग फ्रॉम दिस सेशन, दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट मतलब the client is spending money to be in your session, so the client must be having any form of expectations। okay, तो वो हमें पता चल रहा है। what are some expectations that you have from therapy? सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्टली वील आस्क कि आपको इस थेरेपी सेशन से कोई मतलब कैसी उम्मीदें हैं, क्या कोई पर्टिकुलर चीज है जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है। सो व्हाट काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस डू यू हैव फ्रॉम दीज थेरेपी सेशंस दैट वी आर हैविंग। when you are coming to me, what what is the goal that you have set in your mind, okay, that you want to achieve from the therapy session? Then what are some goals that you would like to set for therapy? The question that I mentioned right now, कि ऐसा कोई लक्ष्य जो आपने अपने दिमाग में सोच रखा है थेरेपी से आपको पाना है, कोई ऐसा गोल। ठीक है, what kind of goals are you looking forward to, ठीक है, इस थेरेपी से। इज देयर एनी फॉर्म ऑफ कंसर्न और हेजिटेशन रिलेटेड टू थेरेपी? क्या आपको किसी भी तरीके की हिचकिचाहट है थेरेपी से? क्या आप किसी भी तरीके से हिचकिचा रहे हैं? ठीक है, तो अगर क्लाइंट इज सेइंग यस, यू हैव टू एम्पथाइज विद द क्लाइंट एंड यू डोंट से कि ओ ओके, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, यू हैव टू नॉर्मलाइज इट कि यस, इट्स वेरी नॉर्मल टू hesitate in the beginning, but I can assure you that it will not be a very bad journey altogether। ठीक है, तो फिर देखिए, ये चीज आप समझिए कि जनरली थेरेपी में आने के लिए अ क्लाइंट हैज टू टेक अ लॉट ऑफ करेज। ठीक है, क्योंकि द आफ्टर ऑल द मेंटल हेल्थ स्टिग्मा दैट वी हैव इन द वर्ल्ड, ओके, उसके बाद भी क्लाइंट टेक्स द करेज एंड कम्स। ओके। सो ऑब्वियसली हेजिटेशन रहने के बहुत से चांसेस होते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं, तो उनसे ये पूछ लेना वुड बी गुड। ओके। हैव यू बीन इन थेरेपी बिफोर एंड डज दैट इन्फ्लुएंस योर एक्सपेक्टेशंस इन एनी वे? मतलब क्या आपने पहले भी थेरेपी ली है और क्या उसका कोई असर हमारे इस थेरेपी पे पड़ रहा है? हैव यू बीन इन थेरेपी बिफोर? ठीक है, ये यहाँ से आपको पता चलेगा कि उसको बार बार थेरेपिस्ट चेंज करने की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा भी कई क्लाइंट्स के साथ होता है। ठीक है, कई बार क्लाइंट्स बार बार थेरेपिस्ट चेंज करते हैं। सो यू कैन गेट टू नो अबाउट सच थिंग्स ऑल्सो। सो यू हैव टू देन आस्क, आर देर एनी स्पेसिफिक कोपिंग स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स दैट यू वुड लाइक टू एक्सप्लोर? इस सवाल का मतलब क्या है, हम उससे पूछेंगे कि क्या ऐसी कोई पर्टिकुलर कोपिंग स्ट्रैटेजी है आपके दिमाग में, कोई स्ट्रैटेजी लेके आए हैं कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना सीखना है। कई बार ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिनको पता होता है कि उनको बाउंड्री सेटिंग में प्रॉब्लम है। कई बार ऐसे क्लाइंट आएंगे जिनको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो चीज़ उनको समझने में दिक्कत होती है, तो डिसीजन मेकिंग स्किल्स उनको इम्प्रूव करनी होती है। ठीक है, so you have to understand that if there are any specific coping strategies that you need to explore. Okay. The next question is, how can I best support you in achieving your goals? तो आपसे आपको क्या करना है, आपको उनसे पूछना है। ठीक है, कि ऐसी कोई पर्टिकुलर चीज है जिससे आप गोल को मतलब मैं आपको गोल अचीव करने में मदद कर सकता हूँ या सकती हूँ।
ठीक है। तो ऐसे सवालों से हमें उसकी एक्सपेक्टेशन, उसका गोल, ठीक है, थेरेपी के लिए उसने क्या सेट किया है, हमें वो पता चलेगा। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ इट मेड सेंस टू ऑल ऑफ यू। बिफोर we end the session, there are certain points that I want you to note. Okay, before we end the session, I want you to know that again, this is not just any list of questions. ठीक है, कोई लिस्ट नहीं है। आप ये ऐसे लिस्ट पकड़ के एक के बाद एक क्वेश्चन करोगे, क्लाइंट भाग जाएगा। ठीक है। देन द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी, मैं स्लाइड से नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद से ही बोल रही हूँ, इसलिए स्लाइड आप रख सकते हैं, वो एक अलग चीज है। आई लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग। ओके, सो बेसिकली मेक श्योर कि रैपो बिल्डिंग प्रॉपर हो। ओके, रैपो बिल्डिंग मतलब कि वो आए, आके बैठा, आप एक के बाद एक सवाल करो, ये नहीं करना है। अगर क्लाइंट ऑटोमेटिकली आपसे ओपन अप हो रहा है तो उसको ओपन अप होने दो। ठीक है, सवालों से उसको मत टोको। आपके सवाल वेट कर सकते हैं, उसका वेंटिंग आउट, उसका कथारसिस वेट नहीं कर सकता। ओके, सो फर्स्टली रैपो बिल्डिंग पे फोकस करो। नो नीड टू कवर ऑल क्वेश्चंस इन द फर्स्ट थेरेपी सेशन। these स्लाइड्स आर जस्ट अ सपोर्ट फॉर योर फर्स्ट थेरेपी सेशन। ठीक है, कि आपको अगर सवाल पूछने कैसे क्या करोगे। ओके, इट शुड नॉट सीम टू द क्लाइंट कि आप उसको इंटरव्यू कर रहे हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, सिर्फ सवाल नहीं पूछने हैं, दूसरे काउंसलिंग स्किल्स भी अप्लाई करने हैं। हाँ जी, वही वाले स्किल्स जो आप किताबों में पढ़ते हैं। ठीक है, एम्पथाइज करो, समराइज करो, पैराफ्रेज करो, ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक करो, ये सारी चीज़ें भी आपको साइड बाय साइड करते रहना है। ओके, एंड मेक श्योर, देखिए मैं ये सबसे ज़्यादा सबसे बोलती हूँ, जितने भी मेरे कलीग्स हैं या जितने भी मेरे अंडर मेरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं ट्रेन करती हूँ या जिनको मैं सेशंस देती हूँ, आई वुड से दैट टेक्निक से भी ज़्यादा क्लाइंट के लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। इफ द क्लाइंट कैन नॉट ट्रस्ट यू, द टेक्निक्स आर ऑफ नो यूज। ठीक है, मेक द क्लाइंट ट्रस्ट यू, हेल्प द क्लाइंट टू ट्रस्ट यू। ओके, उनके साथ एम्पथाइज करो, समझो उनको, जजमेंट की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सो I think I would like to end the session over here. So before we end the session, all I want to tell you is thank you for attending the session. Make sure to subscribe our channel and you will get many more informative sessions coming up. हम बहुत सारे ऐसे important topics cover करेंगे जो आपके लिए बेहद helpful होंगे, and I would say you cannot bear to miss out on that. So make sure you are subscribing our channel, click on the bell icon so that कोई भी नया वीडियो आए, you get to know about that and you can listen to it at your own convenience. लाइक करें, शेयर करें अपने पीयर्स के साथ जो साइकोलॉजिस्ट्स है या साइकोलॉजी स्टूडेंट्स है। एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और इफ यू हैव एनी रिव्यूज, एनी फीडबैक्स फॉर अस, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. We are open for any form of feedbacks and criticisms. No